Bismillahirrahmanirrahim, students in 7th class. Today our topic in general English is the story face showing. तो यहाँ तक आपने स्टोरी में पढ़ा कि इसमें मेन कैरेक्टर जो है दैट इज रहीम बीबी एंड नरेटर जो है ही वाज स्टूडेंट। तो वो अपने बारे में भी बोलता है कि मैं मतलब 9th में फेल हो गया, मतलब मैं जम्मू चला गया, जम्मू से श्रीनगर चला गया। तो रहीम बीबी का में जो उसने बोला था कि तब तक मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी जब तक ना आप मुझे मशानी नहीं दोगे। तो नरेटर उसके बाद हम देखते हैं कि नरेटर जो है क्या बोलता है। यू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज 94। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। Up to this time, I had thought that seeing Rahim Bibi's face was a bit of fun, a mere play, but now this desire to see her face took on a different color. I was determined that I would give her mashani out of my own earning. After some years, I was also married, but Rahim Bibi did not lift her veil. I could not give her mashani, and every now and then when I met her, she repeated, Baji, I am not going to lift the veil without having mashani. One day my wife said, why does this Rahim talk to you with such a long veil over her face? Rahim Bibi will lift the veil only after she gets mashani from me. As for talking, she talks to me in the same way as Saryo Bhabi does. Saryo Bhabi is your own Bhabi, but Rahimo is Muslim. What is our relation with her? My dear, relations among brothers, remembering God by different names do not separate them. Alamuddin is like my real elder brother. You may so, but people don't. Well, I do not follow what others say. I wish that others would follow what I say. The whole world follows what people follow. But have you ever thought who people follow? She could not reply to this. The month of Ramadan came. Muslims stated their fasts. I asked Rahim Bibi, you do not keep fasts? I cannot fast for many days. I fast just for one day. I'm not feeling well. On which day will you fast? On the day that I do not come to fetch water. You can take it that I am fasting. I shall bring sweets for you on that day to break the fast with. No, it is not proper for you to bring sweets for me. Sweets will be bought by him who is supposed to bring them. Then what should I bring that will be proper? For you the only proper thing is that mashani. When I get it, I will see the Eid moon. After some 6 months, Rahim Bibi started having fever, which turned into typhoid and then to pneumonia. More complications followed. The Hakim gave up hope. A doctor was called, but he also held out no hope. One morning, Shamsu came running to our house and said to me, since last night my aunt has been sinking and telling everybody around to go and call Boji. When I said I would go, she said, tell Boji that I am going and that he should come to show me his face for the last time. I understand the situation and set out immediately with Shamsu. Rahim Bibi was lying straight on her back on the cot and her face was uncovered. A fair face on a pale frame. Black eyes and purple spots spread on the cheeks, which reminded me of the Greek statue. Slowly she turned her gaze towards me and said in a very low voice, Boji, I have removed my veil today to get mashani. You may see my face now. My life was stuck in my eyes just to see your face. You must come along up to the graveyard and place a handful of soil on my face as your mashani. Otherwise, I will carry my craving for your mashani with me to my grave. तो यहाँ तक जो स्टोरी है आपने देखा यहाँ तक
कि जो रहीम बीबी थी ये नरेटर को भोजी कहती थी, तो भोजी को ये इसने कहा था कि तब तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी जब तक ना आप मुझे मसानी देंगे। तो नरेटर कहता है, ये जो नरेटर है ये कहता है कि इस वक्त तक मैं सोचता था ये बच्चों, ये मजाक है, ये बच्चों सा खेल है, मगर जो जो टाइम बढ़ता गया ये जो डिजायर था टू सी हर फेस टुक अ डिफरेंट कलर, इसने एक नया रंग अब अख्तियार किया। वो क्या था? आई वाज डिटरमाइंड दैट आई वुड गिव हर मैसेनी आउट ऑफ माय ओन अर्निंग। क्योंकि रहीम बीबी ने उसको बोला था नरेटर को कि आपको मशानी देने है वो अपनी माँ से नहीं लेने बल्कि अपनी अर्निंग से, जो आप अपनी कमाई है उससे आप मुझे दोगे। तो ये क्या था कि मैं भी यही डिटरमाइंड था, मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी अर्निंग से, अपनी कमाई से इसको ये मशानी दूंगा। After some years, I was also married, but Rahim Bibi did not lift her veil. I could not give her messani, and over now and then when I met her, she replied, "Boji, I am not going to lift the veil without having messani." चूंकि नरेटर की भी शादी हो गई, तो फिर भी रहीम बीबी ने उसको अपना फेस नहीं दिखाया, अपना घूंघट नहीं उठाया। तो जब भी नरेटर कहता है कि जब भी हमारा सामना होता तो वो यही दोहराती थी, बोजी जब तक मैं तब तक अपना घूंघट नहीं उठाने वाली जब तक न आप मुझे मशानी दोगे। मशानी का आपको मालूम है, दिस वाज द कस्टम इन द विलेज के मुंह दिखाई के लिए हर एक जो है, हर एक कुछ न कुछ तोहफा लेकर आता था। हाँ, तो यहाँ पर है, one day my wife said, "What does this Rahimo talk to you with such a long veil over her face?" तो एक दिन मुझे अपनी बीवी ने कहा, ये रहीमो जो है ये आपके साथ ये लंबा सा ये घूंघट लेकर ये आपके साथ ऐसी बात क्यों करती है, घूंघट लगा के। रहीम बीबी will lift the veil only after she gets mashani from me. As for talking, she talks to me in the same way as Saryo Bobby does. तो नरेटर अपनी बीवी को जवाब देता है कि रहीम बीबी जो है तब तक अपना फेस नहीं दिखाएगी, तब तक अपना घूंघट नहीं हटाएगी जब तक मैं उसको मशानी दूंगा। जहां तक बात करने का सवाल है, ये भी ये मेरे से ऐसे ही बात करती है जैसे मेरी अपनी भाभी सरियो भाभी जो है वो बात करती है। तो उसकी बीवी उस जवाब देती है, सरियो भाभी इज योर ओन भाभी बट रहीम वाज मुस्लिम। सरियो भाभी तो आपकी अपनी भाभी है, तो ये जो है रहीमो जो मुस्लिम है। तो दिस मीन्स दैट द नरेटर वाज नॉट ए मुस्लिम, ही वाज परहैप्स ही वाज ए हिंदू। तो ये उसको बोलते हैं कि आप ये मुस्लिम है, तो आप सरियो भाभी तो आप व्हाट इज योर रिलेशन विद हर, आपकी इसके रिलेशन, आपका इसके साथ क्या रिश्ता है। माय डियर रिलेशन अमंग ब्रदर्स रिमेंबरिंग गॉड बाय डिफरेंट नेम्स डू नॉट सेपरेट देम। तो नरेटर अपनी बीवी को जवाब देता है कि खुदा को अलग अलग नामों से पहचानने से भाइयों के दरमियान जो रिश्ता होता है वो जो रिश्ता जो है उनको अलग नहीं करता है। अलीमुद्दीन इज लाइक माई रियल एल्डर ब्रदर, सगा भाई जैसा होता है। रहीमुद्दीन जो है यानी इसका खामद रहीमुद्दीन वो मेरा सगा भाई जैसा एल्डर ब्रदर है, मेरा बड़ा भाई है, कैसा सगा जैसा है। यू मे से सो बट पीपल डोंट, तो उसको बीवी जवाब देते आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन लोग नहीं कहते हैं। वेल आई डोंट फॉलो व्हाट अदर्स से, तो उसको मैं जवाब देता है, ये नरेटर जवाब देता है मैं उस चीज को फॉलो नहीं करता, मैं वो नहीं करता हूँ जो लोग करते हैं। आई विश दैट अदर्स वुड फॉलो व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ भाईचारे के बारे में मैं जो बात करता हूँ वही लोग भी करें जो मैं कहता हूँ। द होल वर्ल्ड फॉलोज व्हाट पीपल फॉलो, तो उसको जवाब में उसकी बीवी बोलते हैं कि लोग वही करते हैं जो पूरा दुनिया वही करता है जो लोग करते हैं। बट हैव यू एवर थॉट हु पीपल फॉलो, क्या आपको मालूम है पीपल जो लोग जो है वो किसको फॉलो करते हैं। शी कुड नॉट रिप्लाई दिस, तो उसमें उसका कोई जवाब नहीं था। तो अब नरेटर जो बोलता है रहीम बीबी के बारे में, द मंथ ऑफ रमजान के मुस्लिम स्टार्ट देयर फास्ट, आई आस्क्ड रहीम बीबी यू डू नॉट कीप फास्ट, तो रमजान का महीना आ गया, मुसलमान जो है उन्होंने रोजे रखने शुरू कर दिया। मैंने रहीम बीबी से पूछा क्या आप रोजा नहीं रखती। आई कैन नॉट फास्ट फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों के लिए मैं नहीं रखती हूँ। आई फास्ट जस्ट फॉर वन डे, एक दिन के लिए मैं रखती हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मेरा जो सेहत का मसला है, तो मैं फील नहीं ठीक नहीं हूँ। ऑन विच डे विल यू फास्ट, आप किस दिन रोजा रखोगी।
रहीम बीवी जवाब देती ऑन द डे आई डू नॉट कम टू फेच वाटर यू कैन टेक इट दैट आई एम फास्टिंग। जिस दिन मैं पानी लेने के लिए नहीं आऊंगी, कुएं पर पानी लेने के लिए नहीं आऊंगी, तो उस दिन समझ लेना आप मैं रोजे से हूँ। आई शैल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू द डेट टू ब्रेक द फास्ट विथ, तो मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाऊंगा जिससे आप अपना रोजा जिससे आप इफ्तियार करोगे, जिससे अपना रोजा तोड़ोगे। No, it is not proper for you to bring sweets for me. Sweets will be bought by him who is supposed to bring them. नहीं, आपके लिए ये वाजिब नहीं है कि आप स्वीट्स लाओगे। स्वीट्स तो वही लाएगा जिस पर ये वाजिब हैं, यानी अपने पति के बारे में बोलती है। Then what should I bring that will be proper? तो मैं क्या लाऊं आपके लिए जो वाजिब है? तो ये उसको बोलता है for you the only proper thing is that मशानी when I will get it I will see this ईद moon। आपके लिए मैंने बोला है मशानी, जब तक आप अगर आप मशानी मेरे लिए लाओगे तो वही मैं ईद का चांद देखूंगी। आफ्टर सम 6 months 6 महीने के बाद रहीम बीवी स्टार्टेड हैविंग फीवर विच टर्न्ड इनटू टाइफाइड एंड देन टू निमोनिया। रहीम बीवी का जो है रहीम बीवी को फीवर हो गया, वो टाइफाइड में चेंज हो गया, फिर निमोनिया हो गया, मोर कॉम्प्लिकेशंस फॉलोड, उसके बाद और पेचीदगी शुरू हो गई। द हकीम गेव हर होप, तो हकीम ने उम्मीद छोड़ दी। डॉक्टर वाज कॉल्ड बट ही आल्सो हेल्ड आउट नो होप, तो डॉक्टर को भी बुलाया गया लेकिन उसने भी कोई उम्मीद नहीं बांधी। One morning Shamsu came running to our house and said to me, since last night my aunt has been singing and telling everybody around to go to call Boji। तो शमसू मेरे घर में आया और दौड़ते दौड़ते आया और उसने बोला कि मेरे पिछली रात से मेरी जो आंट है, मेरी आंट जो है, मेरी जो ये आंट है, तो उसको वो उसका सेहत बिगड़ता गया, तो वो हर एक से कहती है कि भौजी के बुलाओ। When I said I would go, she said, tell Boji that I am going and that he should come to show me his face for the life। अब जब मैंने उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो उसने बोला कि भौजी को बोलना कि यहाँ पर आए ताकि मैं उसका चेहरा आखिरी बार देखना चाहूँ। I understood the situation and set out immediately with Shamsu। Rahim Bibi was lying seated on her back on the cot and her face was uncovered। क्योंकि मैंने सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, तो मैं जल्दी जल्दी गया, मैंने देखा वो बेड पर लेटी थी, पेट के बाद लेटी थी, तो उसका फेस जो था डेट वाज अनकवर्ड, ए फेयर फेस ऑन ए फेयर फेम। कमजोर बदन में एक खूबसूरत सा चेहरा, ब्लैक आइज, वो काली काली आंखें, एंड पर्पल स्पॉट्स स्प्रेड ऑन द चीक्स, उसके जो गाल है उन पर वो बैंगनी रंग के धब्बे जो थे। विच रिमाइंड्स मी द ग्रीक स्टेचू, तो मुझे उससे याद आ गया वो अपने भाई का वो ग्रीक स्टेचू, यानी वो यूनान की सी मूर्ति जैसी थी, यानी इसकी खूबसूरती के बारे में बताता है। स्लोली शी टर्न्ड हर गेज टुवर्ड्स मी एंड सेड, क्योंकि उसने अपनी नजर घुमाई मेरी तरफ और कहा धीमी सी आवाज में, लव वॉइस में कहा, बोजी आई हैव रिमूव्ड माय व्हील टुडे टू गेट मशानी, मैंने आज अपना घूंघट उठाया है मशानी लेने के लिए। यू मे सी माई फेस नाउ, आप मेरा चेहरा आप देख सकते हैं। माई लाइफ वाज स्टक इन माई आईज टू सी योर फेस, मेरा जान मेरी आंखों में अटक गया था तो आपका फेस देखने के लिए। यू मस्ट कम अलोंग टू द ग्रेवयार्ड एंड प्लेस ए हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन माय फेस एज योर मशानी। अब मशानी तो आपको देनी है, तो वो क्या दोगे आप? मेरे इसके कब्रिस्तान तक आप आए, मेरी कब्र पर एक, या मेरी फेस पर मेरी फेस पर एक हैंडफुल आप एक मुट्ठी पर ये जो मिट्टी है मेरे फेस पर डालिए, अदरवाइज आई विल कैरी माय क्राइम फॉर योर मशानी विथ मी टू माय ग्रेव। नहीं तो मैं जो ये जो ख्वाहिश है कि मशानी लेने की, आपसे ख्वाहिश मशानी लेने की ख्वाहिश मुझे कब्र तक ले जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फेस ड्राइंग। तो आप जो है इसको फिलहाल आप इसको रिवाइव कीजिए, तो कल हम इसकी एक्सरसाइज करने जाएंगे।